And for the first time, I saw Jawaharlal face to face. So he was very calm, very weak Prime Minister. Sharla telephoned Jawaharlal, Prime Minister, I am resigning from the commission. How dare you praise him? Kiran Bedi was my student. Indira Gandhi was neck deep in corruption. There was another contender for Indira Gandhi, Raman और लोग Seriously? हाँ, कल पार्लियामेंट में सवाल होगा, तेजी बच्चन जवाब देगी कि इंदिरा गांधी देगी। जेल में 4 महीने तक मेरे घर को नहीं पता मैं कहाँ हूँ। मुझे चैम्बर में बुला लिया, कहता जय साहब मुझे पता आप प्रेसिडेंट हैं, या तो मैं अपनी नौकरी गवा लूँ या आपको बेल दे दूँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं आ रहा है उसमें। आ रहा है। अच्छा, आप वो अपने आप से उसको अर्थ कर लेंगे, एडिट कर लेंगे। सारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, मैं ही एक बुद्धू हूँ। Hi everyone, welcome to another episode of our podcast VTALK on VLawGish, and today we have with us Advocate Janak Raj Jai, sir. Sir has been a lawyer, a practicing advocate. He has practiced across the Indian courts. Apart from this, sir has been in government service. He was closely related to Mr. Nehru, Ms. Gandhi. He has worked with both of them. And in this podcast, you'll get to know about various aspects of his life. Apart from that, he's a very sweet, very humble person, an academician also. तो students जो भी हैं, जो सब देखते हैं, कभी भी आप आके सर से मिलोगे, बात करने की कोशिश करोगे, कुछ सीखने की कोशिश करोगे, he'll always be very open to it, है ना सर? आता है कोई अगर आपसे बात करने? खूब आते हैं, है ना? खूब आते हैं। हाँ, हम लोग भी आते हैं, हम लोग भी सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ बताओ, कुछ बात बताओ, कुछ और नया सिखाओ, तो ही इज़ ऑलवेज वेरी ओपन टू इट। और इसीलिए बस ये पॉडकास्ट में कुछ इसी तरह की बातें होगी। सर से सबसे पहले हम शुरू करेंगे उनके अर्ली करियर से, जब वो एक गवर्नमेंट सर्विस में थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे। जो हम लोग नहीं देख पाए अपनी एज की वजह से, वो आपसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि अब मैं तो वापस नहीं जा सकती इमरजेंसी एरा में, तो सर मुझे वहाँ पे वापस लेके जाए। जैसे कि आप स्कूल में आए थे तो आपने बच्चों को बताया था, बट चिल्ड्रन हैड अ लॉट मोर क्वेरीज, so all of them wanted us to do a podcast with you. That means a discussion, like we are having a one-on-one talk, like we are also developing a bond with each other. तो उस तरह से कुछ podcast होगा, वो concept है यहाँ पे। तो सर इनिशियल ईयर्स से अगर हम स्टार्ट करें आपके एकदम शुरू से, so you were in government service, right? Yes. So कैसे आपने स्टार्ट किया? Because you worked for 8 long years with Nehru. See, I joined Government of India in 1948, and up to 56, I was in Ministry of Communications, Director General of Posts and Telegraphs. I started my career as a clerk. Then slowly I continued my academic studies, and then I passed one stenographer's examination. There also, you see, we had trouble. And what happened, you see, in stenography, when the dictation is given, it is given in every room where every speaker is there. Okay. But in Delhi, they put, what is that called? वो screens? No, not screen. Only one man speaks in all other rooms. Some devices is there, Okay. and we have to listen to that. And other centers, because it is UPSC examination, class 2, and see after that you become a master in that. उसमें क्या सबसे बड़ी ट्रबल ये हुई थी, I don't mind I speak in Hindi and everything. Sir, Hindi. Audience understands both English, Hindi and English. तो उसमें क्या हुआ था कि जहाँ वो माइक लगा हुआ जहाँ से सुनते हैं वो कबूतर फड़फड़ा रहे थे, एंड इन स्टेनोग्राफी इतनी भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। Now only in Delhi there was, because many rooms, many students, so only one speaker was there. At the other room, what is that called? Mic? Mic is fitted in. So with that, what happened? We couldn't listen, and we protested. They said you will have to listen. Then what we did, we came out of the center and started agitating, started pushing, and it was a very big agitation. I was one of the leaders in that. And there somebody put a cycle here, मुझे खड़ा कर दिया,
And then I said nobody should take this examination because this is a discrimination between center and center. There, we got lot of success in that. Then there were cycles. We were going on cycles on the streets, and that cycle will give that dice. At least 5,000 students were there. Then ultimately, we decided to meet the Prime Minister. Okay. And with me, my colleague Jawaharlal Kapoor, we both were taking the same examination. But because since he was in the Prime Minister's Secretariat at that time, तो हमारे लिए आसान था. सब इकट्ठे हो गए. We met the Prime Minister. He listened. That was the first chance of my life. It was perhaps in 54 or 55. Because by that time I have not joined Prime Minister's office. When Nehru listened to us, he telephoned the UPSC chairman. I think he was Mukherjee. And he said, when 4,000 students, candidates come and shout that they are not listening, you can't force them, they must listen. And why there is a discrimination between the center and center? He says, go my boy, we will look into it. Then he said, you go and meet the UPSC chairman. He shouted at us, I have been holding UPSC examination and most successful. And you, this stenographer examination, please don't shout, we will again go to the Prime Minister. Then he cooled down. What happened after that? We formed an association and we wanted to meet the Deputy Home Minister. He was Mr. Datar. I think B.N. Datar, I can't say anything. He was living in Thiri, Safdarjung Road. We met him. He said, my boys, don't worry. You see, 50 demonstrations candidates, they were suspended. Then he gave us assurance. Ultimately, we met one member of parliament from Madhya Pradesh. He was from Bilaspur. He listened to us. He raised a point in the parliament. This turned over examination. And the members were within our favor. They said, don't worry, we will do it. Ultimately, what happened? This examination was withheld. Those who were suspended, they were taken back. And from de novo, examination started. And we gave. And we were successful in that also. So there I met Kapoor also. So this is how I came in contact with Kapoor. After that, we took other examination, that thing was over. Okay. And we were very happy that we have been able to succeed in that. Everybody, in every room there was a speaker, like other centers. So your center was not similarly being treated like... हाँ अरे मैंने कहा अगर हमें यह पता होता कि आप जहाँ एक में सब सुनेंगे तो हम शिमला चले जाते हैं किसी और में से जहाँ एक ही स्पीकर और थोड़े से कैंडिडेट होते हैं. Anyway, that was a big success. But I continued in the government of India. अब आप कहते हैं how I did reach Prime Minister's office. That's it is a destiny, I will call it. You are destined. And Indira Gandhi needed one full-time person with her. She had no official status. Yashpal Kapoor was attached. Sir, sorry to interrupt. Yes, but yes, no official status and still she needed a one full-time... Full-time, no, person. I tell you, not one. She got two more. They were getting salary from Prime Minister's office, but they were working. For Ms. Gandhi. That was Ami Krishna. I think he was General Thama's niece or daughter. Her father died in the army. And the other was Usha Bhagat. She at some time she was the speaker of teacher of Sanjay. So these two and Yashpal Kapoor, they were asked to go there. But I was special assistant to Prime Minister. He was all in all. And then Kapoor telephoned me in 1956. Janak, would you like to come over to PM Secretary? Because I am being relieved. He was within only personal staff of
prime minister there. Yes. Because since she needed, Of course. तो उसने बताई ने कहा कि you go and help her. But he was getting salary from prime ministers. Army Krishna getting salary from Usha Bhagat was, I think, special secretary. I can't say from where she was getting, because from Ministry of Commerce she was made some chairman or something on that. But these two people, officially, they are in the prime minister's strength. But they, so I just thought I must try. So this is how he said, you have to be very careful, and it's a very serious job. I said, don't worry. I thought I got this good opportunity. Why should I not take advantage of it? So I joined the Prime Minister's office. Okay. So that's how you came into contact with. Yes, and for the first time I saw Jawaharlal face to face. How was your first meeting? Yes, it was very calm, Very calm. very patient hearing. And perhaps he was convinced कि हमारे बच्चों के साथ बड़ी ज्यादती हुई है. And immediately in our presence he telephoned UPS chairman. I'm sending 5 delegates. Please listen to them. Then when we met him, he shouted at us. Then we said, let us meet Home Minister also. Let us meet, put it in the Parliament also. So this is how that was a big success, and this is how I was able to, because in 1948 I joined Communication Ministry, Director General Post of Telegraph, and I joined as a clerk. But slowly I reached to this stage, and yes. I could reach Prime Minister's office and have the opportunity to have darshan of the first Prime Minister of India. Yes. तो जैसा मतलब एक प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए, लीडर को, काइंड थे वो, एम्पैथेटिक थे, मुझे Yes. सुन के लग रहा है. Yes. ठीक है. बट सर मैंने बहुत जगह, अब जैसे आपने यशपाल कपूर के बारे में आपने डिस्कस किया, आई वाज रीडिंग अनदर बुक दैट इज बाय मिस्टर नवीन चावला. ही आल्सो डिस्क्राइब्स वन ऑफ दिस इशू एंड आई वाज वेरी डाउटफुल. तो मुझे तो आपसे सुन के एक ये लग रहा है कि हाँ, बिल्कुल ठीक बात ये थी कि कहीं ना कहीं तो जो पब्लिक मनी होता है, जो गवर्नमेंट का पैसा होता है, दैट वाज बीइंग यूटिलाइज्ड टू सर्व प्राइम मिनिस्टर्स डॉटर इन सम वे. यहीं से मुझे ऐसा लगता है देख के कि एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, प्राइम मिनिस्टर नेहरू और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बहुत अलग थे शायद. सो डू यू होल्ड सिमिलर व्यूज जस्ट लाइक मी? उनमें डिफरेंसेस बहुत थे क्या एज अ पर्सन? Should I say one thing? Later on I will tell you how. Prime Minister was a very weak Prime Minister. He sheltered, gave protection, corrupt people. Indira Gandhi was neck deep in corruption. And I will explain how it happened, you see. But there I could not open my mouth. In my books also I have written this. And see, the Blitz also interviewed me, and they have everything written, how all this thing happened, and how the officials are put when she had no official status. Right. So that certainly shows. Number 3, here also Nehru committed a very big blunder to keep Mathai in the Prime Minister's house. He took full advantage of his, and he exploited it. And he tried to see that the Feroz Gandhi or Indira Gandhi don't meet. See, the difference went to such an extent in Parliament. Feroz Gandhi said, Mathai is Jawaharlal's son-in-law. Jawaharlal's son-in-law. I was shocked. There was in the Parliament Central Hall, the gossip about it. And you see, Jawaharlal tried to reconcile, but Mathai never wanted. So this was the biggest blunder Jawaharlal committed. And after all, I'll tell you how he amassed money. He created Achma Trust after the name of Amrit Kaur. Amrit Kaur was very close to him. There were also stories about him. And she was at that time health minister. She was made the Chechnya, I think, trust था. उसके ये Mathai was the chairman. She was the chairman perhaps. She was, and she collected lot of money for helped Mathai for the trust. There was a question in Parliament how he has amassed so much money. Jawaharlal was very much embarrassed, but he didn't have the guts to ask him. But when things went beyond everything,
ultimately he had to resign. And then he tells Prime Minister, I have resigned. Acha kiya aapne resign. So what I'm telling you, here he tried to shelter and give shield to wrong people, corrupt people. But, there's another episode on this. There is a T.T. Krishna Machari, he was a finance minister. Krishna Machari. He was involved in LIC's shares. Mudra was the main actor in that. It was a very big scandal. There were questions in the parliament how T.T. Krishna Machari allowed him, and he gave out of the turn favor to him. When there was a lot of hangama in the parliament, one man commission was formed. Justice Shagla was to head the commission. No, I think one came or when they were talking, requesting the Shagla, it may be accident or it may be intentional. T.T. Krishna Machari reached in that. Shagla felt very much embarrassed. जिसके खिलाफ कहते हैं देखो हुआ के बैठ गया यहाँ पर. But he didn't speak at that time. So, however, the commission went on. Shagla ने कहा कि मैं जो भी commission one man commission रखूँगा, it will be in public use. It will not be a secret one. Here, again now I'm telling you how he shielded protected these corrupt people. In Bombay, Jawaharlal was holding some meeting. There he praised T.T. Krishna Machari. Okay. In the meeting itself? Yes, not in the meeting. And he was facing that commission. That commission, which Shagla was heading. Shagla telephoned Jawaharlal. Look, Prime Minister, I am resigning from the commission. He is accused before me. How dare you praise him? Jawaharlal regretted and he apologized. Please, you go ahead. I'm sorry, I should not have done that. Ultimately, T.T. Krishna was held guilty. So he had to resign. He resigned. Prime Minister said, I have nothing to say on the findings, but I regret his going. Again, you see, he had a soft corner for it. No, it is a soft corner. I say the corrupt people you are shielding. You are the Prime Minister of this country. What administration of justice should be? How can you say soft? It can be very small irregularity. There one can say he is a soft one. Knowing fully well that he has been guilty, and he was appointed by Prime Minister himself, and Prime Minister warned him. So, मतलब पहला जो जिसे गलत इंसान को उन्होंने चूज किया अपने घर में रखा इतना क्लोज रखा वो तो उसने तो मैं कहूँगा पंजाबी में बेड़ागर्क कर दिया इस हाउस का. He is the person who did not allow Feroz Gandhi and Indira Gandhi to come here. एक टाइम तो you see when she came early and Jawaharlal Nehru was very much interested in Feroz Gandhi. She asked her, have you anybody in mind other than, you like him? She said, yes. So she said, then what I can do? Go. It was not his choice. Against the wishes of, he did. Now I'm here again tell you, when he was leaving, you know what happened? Jawaharlal went to the airport to say him goodbye. Look at this. To what extent? So this is how our country was ruled. I was very much annoyed, disappointed, desperate, but I was helpless. I couldn't do anything. Either I come out and speak all this, but at that time I was not that mature. Right. सर वो इसलिए भी आप इतना डिसअपॉइंटेड हो गए ना कि आपका जो इनिशियल इंटरेक्शन था वो तो ऐसे था कि ये काइंड प्राइम मिनिस्टर who listens to people, who understands. You see, I have a lot of praise for him on this thing that during freedom struggle, that man was outside 1 lakh jail. 9 years he was in the jail. He fought very well for the independence of the country. But at the same time, after that,
He was garroted by all these scoundrels, I will say that. I'm sorry using these words because they were held guilty by Chagla is one of the outstanding judges of the High Court. He was a chief judge. उसकी अगर आप biography पढ़े, Roses in December, it's wonderful. I think every person who has some interest in the country must read that. Sir, in our 2-3 videos back, we discussed that book in fact. और वो स्टार्ट भी उस बुक का इतना अच्छा है कि वो आपको हर एक वर्ड बहुत कुछ सिखा देता है. इट्स अ वंडरफुल बुक आई थिंक. Roses Not Thorns. Yes, Roses in December. Be the Roses Not Thorns is by Khanna. Yes, I read these 2 books. मेरे पास है. हाँ, HR Khanna और MC Chagla. तो HR Khanna was neither roses nor thorns. Yes, that but was what I was not very much because they are not writers. तो उन्होंने लिख दिया, but his was a classical. Khanna also has written so many things, how he was behaved, how he was pulled down by Indira Gandhi and all these things. So this is how, this was the thing, and where I found myself, it's a very sad thing that this is what is happening at the Prime Minister level, because the person who fought independence, they donated their house, Swaraj Bhavan and all that, left all these things, सब कपड़ों को जला दिया, अंग्रेजी कपड़ों को भी जला दिया, सब कुछ कर दिया. Before taking over as Prime Minister, he was a wonderful person. His contribution cannot be denied. No, we'll have it later. Sir, you want tea? मैं भी कुछ नहीं कहूँगा. ले लो. अच्छा, इंटरनल हो गया? हाँ, इंटरनल नहीं, कोई बात नहीं, वो कट हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं. तो मैं ले लो. चाय दूँ? हाँ? चाय रेडी है. चलो ले लेते. थोड़ा सा ले लो. गला खुल जाएगा. ऑन ही रखो, कोई बात नहीं. कर देता हूँ, उसको बोल देता हूँ. वेरी इंटरेस्टिंग पीस जो मैं बताने जा रहा हूँ. खोल दिया. There was another contender for Indira Gandhi. That was Raman और लोहिया. Seriously? हाँ, yes. तो बल्कि ये कुछ दिन उन्होंने इसको रखा था स्वराज भवन ने, तो शायद पटेल ने या किसी ने कहा कि जवाहरलाल ये कहा आपने बिच्छू पाल रखा है. He just smiled. नहीं आ रहा है उसमें. आ रहा है. अच्छा, आप वो अपने आप से उसको अर्ज कर लेंगे, एडिट कर लेंगे. सारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, मैं ये बुद्धू. अच्छा, क्या हुआ? अब ज़्यादा पर्दे ना खोलो ना पापा जी. पर है ना तो कुछ थोड़ा सा ढका रहेगा. मैं कहाँ था? मिठाई को क्यों रखा है? मिठाई जो था, Gopal in his book biography on his father Radhakrishnan, he writes Mathai was planted by CIA on Jawaharlal before he became the Prime Minister. और वो तनख्वाह भी नहीं लेता था. Then when Jawaharlal became Prime Minister, Mathai asked, I want to go with you as Prime Minister. मैं तो आपको कुछ पैसे नहीं मिले, because I don't want any money. And this is how it came. And Jawaharlal had very, very soft corner for this man. But he took full advantage of his... and I have never heard that a PA's special assistant is residing inside the house. He was the mastermind, he will do everything. No sparrow will run this side or that side without his permission. Even the younger ministers, junior ministers, if they want to get any work done, they have to approach Mathai, not Jawaharlal. They got so close. Yes, it was all in all. और जवाहरलाल के साथ बैठता था जब जाते थे ये गाड़ी में भी. So this was the position of Mathai. और स्वाय पंत के, मौलाना आज़ाद के, एक और जगजीवन राम के, इनके अलावा वो डायरेक्टली मिलते थे प्राइम मिनिस्टर. ये पहले मिल के और मज़े की बात ये है, another weakness of prime minister, that is every father has it. जब भी कोई मिलने आता था तो जवाहरलाल यूथ से इंदू को भी मिल लेना. That shows that he is growing up. So people know if you want to get things done. Meet. Another was Janak Raj Jai. Janak Raj Jai also destroyed the house of this. Indira Gandhi had a very, very soft corner. He had access to her room without any permission. So many stories go, I will not say.
diverged on that, but certainly eyebrows were raised. And he also took full advantage. Now what he did, and a weakness of Jawaharlal I'll show you. He was running yoga center. यहाँ गोल्ड करने के बाद है ना, he when Dr. K.R. Shrimali was the education minister, he went to him कि ग्रांट रिन्यू कर दो. उसने कहा पिछली ऑडिट रिपोर्ट लाओ. कहते मैंने तो आज तक किसी को नहीं दी. कहता शिरवाली नहीं देगा फिर आपको. ही met इंदिरा गांधी दरिद्र बेचारे कि डॉक्टर श्रीवाली ने बंद कर दिया ग्रांट. he was very close to Indira Gandhi also, this Daridra Bichari, another scoundrel. She talked to Prime Minister. Papu, she used to say Papu. Papu, शिवमाली साहब ने ना वो ग्रांट बंद कर दी. He asked शिवमाली also, कहता कि मैंने कहा मना किया, मैंने कहा पिछले दे दो. But Indira Gandhi was adamant. Audit report or no audit report we should do. Ultimately, Jawaharlal इतना तंग आ गया, कहता should I throw him out of the window? If he says grant दो, still she overpowered him. Ultimately, he sacked him. Shirwali was shunted out. And in his place, Chakla came as education minister. और इंदिरा गांधी ने एक बड़ी चालाकी से किया कि उसने कहा कि आपके कपड़े वपड़े सिलवाएंगे, सब कुछ करेंगे, यही टेलर मंगवा लेंगे. यू स्टे इन प्राइम मिनिस्टर हाउस फॉर 5 days. छागला को प्राइम मिनिस्टर हाउस में रख लिया. कृपाल वाज द एजुकेशन सेक्रेटरी. शी आस्क्ड कृपाल को फाइल ले. व्हेन ही ब्रॉट द फाइल, छागला नेहरू के कहते ये छागला से साइन करवा लिया ग्रांट की. दिस इज हाउ he got it. मतलब सर, look at what is happening. Right. So can we say that Indira Gandhi was kind of manipulative? She Yes. was good at manipulating Yes, people. yes. चाहे वो उसे अच्छे तरीके से यूज कर ले या नेगेटिव तरीके से यूज कर ले. और नेहरू की जो पर्सनालिटी थी, उनकी कुछ ऐसी पर्सनालिटी थी कि वो बहुत जल्दी लोगों के साथ इमोशंस में सोए हुए हो जाते थे, बह जाते थे कहीं ना कहीं. जिनको पसंद करते थे उनके साथ Yes. बहुत इमोशनल होकर Yes. उनकी सारी बातें मान लेना, Yes. उनकी बातों में आ जाना. और उनकी He will ignore that. अब बधाई के लिए अभी पार्लियामेंट में इतना हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ. उसने नहीं कहा कि तुम रिजाइन करो. जी. और इवन कृष्णमाचारी का जैसे आपने हाँ, बताया, yes. सब कुछ मतलब उनको गिल्टी डिक्लेयर होने के बाद भी उन्होंने कहा कि I regret. Another person was Krishna Menon. Jawaharlal came very close to him in London. और ये इंदिरा गांधी भी उसको काफ़ी क्लोज वहाँ आई थी. So he was very close to Jawaharlal. He was not a good defense minister. कंट्री का जो पट्टा बैठा है ना चाइनीज में, I blame him. Then what happened? In Jeep scandal, he was caught in corruption. And President Razak started sacking him. Jawaharlal was in tears. कहते नहीं उसको सैक ना करो, मैं उसका पोर्टफोलियो बदल देता हूँ. तो मिस्टर मेनन से भी उतना ही क्लोज. हाँ, बहुत ज़्यादा. और इसने Jawaharlal's another weakness. जब he was squeezed कि इसको जब निकालना है अपने यहाँ, he requested president, please give me in writing what you said orally. मुझे लिख के दे दो. वो लेटर है मेरे पास. We'll see it today. हाँ? We'll see it today before going. अच्छा. मैं आप निकलवाते हो. हाँ. अच्छा चलो बाकी चाय पियो. लूजर आप लोग. थोड़े अच्छे ट्रेड्स पे हाईलाइट कर दो पापा जी. जवाहरलाल नेहरू के थोड़े अच्छे ट्रेड्स पे हाईलाइट कर दो. नहीं मैंने किया, पूछिए कितनी प्रेस की है. इनिशियली उन्होंने काफी अच्छा बोला था. बड़ी सैक्रिफाइस है.
उन्होंने कपड़े जला दिए, देसी पहनने शुरू कर दिए, खादी कर दिया, घर दे दिया, सब कुछ दे दिया। आफ्टर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, वेरी वेरी वीक। लो भैया लो। सर लो चाय। सर मतलब बोलते हैं ना कि पावर करप्ट कर देती है, मुझे लगता है कि उनके केस में। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। सर आपके पास टाइम कब होगा? हम तो बैठे रहेंगे यहाँ पे सुनने के लिए। यू आर नॉट शॉर्ट ऑफ टाइम मैम, इसलिए आप बात करते मैं खाली बैठा हूँ। आई हैप्पी सब पीपल कम, ये कभी आती नहीं, मैं क्या आ जाएगा, कभी नखरे करती है। इसके खिलाफ शिकायत कहाँ करूँ? देखो सर मैम ऑनलाइन जा रही है शिकायत, पापा जी ऑनलाइन जा रही है शिकायत। मैम एडवोकेट है ना, तो फिर बार काउंसिल चले जाओ कि शी इज नॉट गिविंग मी टाइम। You're asking, we can just spend days listening to him. It's got so much, to share. So much to share. He's written only selectively in the books. But if you sit with him, he will just come out with one of the incidents, you will be amazed. Oh, ये सब हुआ था. मैम इवन इन द बुक्स आई हैव रियलाइज्ड कि कभी-कभी पहले जब मैंने शुरू में सर की बुक्स पढ़ी ना, मुझे लगा कि पता नहीं शायद मुझे ही समझ नहीं आ रहा, इट्स ऑल हैफिजार्ड। फिर मैंने देखा इट्स नॉट हैफिजार्ड, इट्स लाइक ही इज पिकिंग अप अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स एंड रिलेटिंग इट। तो फिर एक दो बार में जाके समझ आया, एक दो किताबों के बाद कि हो क्या रहा है। ये खा दे देना गुलाब जामुन, एक वाइट दे दो, एक काला दे दो। सर ये खाते हो ना आप आईलाई में भी लेके आते हो She remembered. ये जो भेज दे मैं खा लेता हूँ। शी इज द होस्ट। आई वॉज थिंकिंग आज कि सर के लिए कुछ लेके जाते हैं, तो हमें याद आया कि सर मीठा खाते हैं, आईलाई में भी लेके आते हैं, तो हम सोच रहे थे क्या लेके आए। डू यू लाइक इमरतीस? हाँ, आई गॉट इमरतीस फॉर यू। So sweet. दो इंसिडेंट और बताऊंगा जहाँ इंदिरा गांधी ने एम्बेरस किया जवाहरलाल को। सर मैं कह रही हूँ ज्यादा मत खोलो किताब मत खोलो ज्यादा, बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है। अभी तक तो बचे हो आप, प्रोटेस्ट बहुत सारे कर दिए आपने। आई एम मेकिंग इट पब्लिक। कभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, कभी इंदिरा गांधी के। सर ने जितना सब बता दिया ना, हमें भी देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया, कितना टाइम। Nehru went to Russia, where she was presented a very very costly mink coat. जो कहते हैं कोई जानवर होता है मिंक, उसकी तारों से करके पता नहीं लाखों रुपए में वो कोट होता है। इसी रूल ये है कि अगर प्रेस्क्राइब कीमत के अभाव हो, यू हैव टू डिपॉजिट दैट इन तोशाखाना। शी वॉज वेरी पॉजेसिव, उसने दिया ही नहीं। जैसे इमरान खान ने अपने पास रखे थे तोहफे सारे ना, अब बेच रहा है उनको। शी ऑल्सो डिड दैट। पार्लियामेंट क्वेश्चन हो गया, राम लोहिया ने खड़का दिया, वेयर इज दैट मिंक कोट, इट डज नॉट रीच तोशाखाना। जवाहरलाल राम लोहिया से बहुत डरता थे, बिकॉज वेरी पावरफुल पर्सन। अपोजिशन ऐसा होना चाहिए, और दबंग था पूरा। इसलिए इंदिरा गांधी को कहा कि बीबी तेरे फॉर डेज टुगेदर शी विल नॉट। अल्टीमेटली जब पानी सर से ऊपर गुजर गया और पार्लियामेंट ने छोड़ा ही नहीं, देन ओनली शी अनदर जुए से इसको बहुत कीमती नेकलेस मिला था, वो भी इसने। दैट शोज मतलब शी ब्रॉट एम्बैरेसमेंट ऑफ जवाहरलाल टू हर फादर, ऑफ कोर्स। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि जवाहरलाल शील्ड करप्ट, शी वाज नेगेटिव करप्शन। तो इस बार पार्लियामेंट में क्वेश्चन हो गया कि डिडंट रीच तोशाखाना, कई दिन तक नेकलेस दिया ही नहीं। अल्टीमेटली व्हेन पार्लियामेंट में क्वेश्चन आया, देन ओनली शी पार्टेड विद इट। सर ये कोट और गिफ्ट्स ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हमने उनके पोजेसिवनेस कितनी हद तक बड़ी वो देखा था इमरजेंसी का, अगर हम जितना भी वो तो बात की बात है, रिकाउंट करते हैं। आपने बीबीसी वाली वीडियो में ना एक एनेक्डोट बताया था, वीडियो देखा था हमने, उसमें नेहरू आए अपने, उनको चाहिए होता था कि आधे घंटे पहले एसी ऑन करके रखो व्हेनेवर आई एम कमिंग टू ऑफिस, एंड ही हैड टोल्ड वन ऑफ हिज पियोन थे वो, उनकी सर्विस में ही थे वो, उनको उन्होंने बोला था आपको करके रखना है। उन्होंने एसी ऑन किया, उसके बाद ही स्लेप्ट, ही डोज्ड ऑफ। मैं भी बताऊंगा। हाँ, अभी बता देता तो वो एनेक्डोट हमको अच्छा लगा था। मैं बताता हूँ। ही वाज वेरी काइंड फॉर द सबॉर्डिनेट स्टाफ, वेरी काइंड। लाडो सराय में एक कपल है,
वो जहाँ जवाहरलाल जाता था, ही यूज्ड टू गो देयर, ही लॉस्ट हिज लेग्स इन दैट। एक वो दिन वो लाडोसरा से बाल्टी दूध के लिए आया। जब बाहर सुबह प्राइम मिनिस्टर मिलते थे 6 बजे लोगों को, पब्लिक एक अंडर सेक्रेटरी पब्लिक होता है, वो वहाँ होता ही इनको आने नहीं दिया, इन कपल को, और डांटने लगे। पंडित जी ने सुना, क्या हो रहा? कहते नहीं, नो आई विल लाइक गो एंड सी। वो बैठे, कहता ये अंदर नहीं आने देते। कहता क्यों नहीं आने देते ने? लेट देम कम इन। कहता हम आपके लिए दूध लाए हैं, यू नो, ब्रेकिंग ऑल दी प्रोटोकॉल्स। कहता थोड़ा हमारे सामने पी के दिखाता थोड़ा। वो पंडित जी ने थोड़ा पी लिया। सारे सिक्योरिटी वाले जो थे, दे वर हेल्पलेस। और खुश हो? नहीं, हम आपके साथ तस्वीर खिंचाएंगे। मेरे पास तो फोटो है। अच्छा। हाँ, आई हैव दैट फोटो। तो पंडित जी ने कहा खड़े हो जाओ। कहता और कुछ? कहता और हमारी इच्छा है, आप हमारे घर आएंगे। लुक एट दिस, लाडोस राय, दीज आर हार्ड फैक्ट। डिड ही गो? बता रहा हूँ ना अभी। बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो गई, क्योंकि आपने बोला दूध पियो, पी लिया, फोटो खिंचवा ली, तो कुछ और भी मांग लेते ना उस दिन। पंडित ने कहा भाई वो होता है ना फूल वालों का मेला होता है, मरोली में होता है। पंडित ने कहा जब मैं वहाँ जाऊँगा मुझे घर ले चलो। सारे सिक्योरिटी वाले इसके घर पहुँचे। पिताजी अपना घर बदल लो, ठीक ठीक जगह पर हम वहाँ ले आएंगे पंडित जी। ये तो गलियों में कहाँ है? कहता यहीं आएगा जवाहरलाल, मैं और कहीं नहीं जाऊँगा। अल्टीमेटली वैन ही वेंट, फूल वालों की सारे ये सर मुझे वही ले चलो। ही वेंट देयर। उसने दो मूड़े रखे हुए थे, मुड्डा यू नो, मूडा आई नो। ही एंड पंडित वेंट एंड मेट। इसके बाद लाल बहादुर भी वहाँ गए थे। लाल बहादुर के बाद ये भी गया था। कहा कि ये मूडा जो है मैं किसी और को नहीं बैठने देता, छात्री जी बैठे, आप बैठे, आप बैठ सकते हैं, क्योंकि आपने सारा हमारा काम कर दिया है। दिस इज वन एस्पेक्ट। नंबर 2, हमारे वहाँ वो टेलर होता था जो इंदिरा गांधी की कोटी, पेटीकोट, चेटीकोट, इसके छोटे छोटे टाँके वाके था ना, तो ही यूज्ड टू बी देयर। उस्मान था उसका नाम, आई एम सॉरी आई डोंट नो एग्जैक्ट नेम। हर ईद में पंडित जी उसको बुला के उसको गले से मिलते थे। अब उसको एक दिन बड़ी शर्म आई, ही वॉज फीलिंग वेरी। ईद वाले दिन गायब हो गया। पंडित जी ने कहा कहाँ है भाई वो मौलाना? भाग गया वो। कहता जब आए मैं पेश करना। शाम को आया, कहता चलो पंडित जी बुला रहे हैं। पेश हुआ, टीयर्स इन हिज आईज। क्यों रो रहे हो? आज क्यों नहीं मिले गए? ऐसे रहो, गले मिलो। ही वॉज इन टीयर्स लाइक एनीथिंग। पंडित जी से गले लगा दिया। ऐसा मत किया करो, हर ईद में ऐसे ही हो गया। सर काइंडनेस का आपने बता दिया, और सारे एपिसोड बता दिए। हम थोड़ा सा जंप करेंगे टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। एक बहुत क्वेश्चन था जो बहुत लोग जानना चाहते हैं। नेहरू वाज वन ऑफ सच पीएम जिनकी सडन डेथ हुई थी, और अनटाइमली सा था, मतलब वो शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि एकदम से ऐसा हो जाएगा। तो डिस्पाइट मैं एक किस्सा और बताना चाहता हूँ। बताओ सर। हजाम आता था हजामत करने प्राइम प्रेसिडेंट हाउस से, और उसको 10 रुपये हम देते थे हजामत करने में। तो पंडित जी हम करा रहे थे, तो उसको कहता है मैं विलायत जा रहा हूँ, तुझे कुछ चाहिए? कहता हजूर कभी लेट हो जाता हूँ, गाड़ी हो तो लेट से नहीं हो सकता ना। पंडित जी केप्ट इन माइंड, ही वेंट टू इंडिया। पंडित जब वापस आए, जब फिर बाल बनाने आए, कहता उससे पूछोगे नहीं तुम्हारी गाड़ी लाया है कि नहीं? लाए थे। ही टेलीफोन बजर दिया स्टेशन, वो गाड़ी लाओ, एंड गिव। दिस इज टच विद स्मॉलर पीपल। हाँ भाई, इसी वजह से भी मैं पूछ रही थी कि उनका इतना काइंड होना, इतना लोगों से ज़्यादा क्लोज होना, टच में होना, बातों को याद रखना, तो उनकी डेथ के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ग्रीफ का माहौल हो गया। क्या हुआ उसमें? 1962 में आई वॉज देयर, चौ इन लाइन वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट नेहरू। ही केम, और देयर इनका एक समझौता हो गया, दैट वाज कॉल्ड पंचशील एग्रीमेंट।
तो उस वक्त पंडित जी ने फॉरेन पॉलिसी ही फेल्ड, और चौन लाइने जब पंचशील हो गया, ही asked the army, send these army people to barracks. We don't need now, there is a Panchsheel. What happened? आर्मी को बैरक में भेज दिया। चाइना बदमाश था शुरू से ही है। ही अटैक्ड इंडिया, और हमारे जवानों ने किरण फ्लीट के साथ बर्फ में 4-4 फुट खड़े होकर लड़ाई की है, बिकॉज दे डिडंट हैव एनी, इसको इग्नोर कर रखा था आर्मी को, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। दैट वाज द बिगेस्ट। और प्रेसिडेंट ने कहा कि ही शुड बी सेंशर्ड। नेहरू met president, कैन आई एडमिट वी हैव फेल्ड। में पूरा है। सो दिस इज हाउ 62 का जो धक्का लगा है, आई वॉच्ड हिम, ही वॉज नॉट, देयर वॉज नो प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्री आफ्टर 62 और 64 के बीच में। कोई एक बड़ा भाई पेड़ है, 3 मूर्तियाँ उसमें, वो गलियारी को देखते रहता था, बैठते रहते थे। ही कुड वॉज नॉट, ही वॉज इनकैपेसिटेड। मुझे ये भी पता लगा कि सीढ़ियों को भी छोटा किया गया, बिकॉज यू कांट क्लाइंब। तो इट वॉज वर्स्ट टाइप ऑफ पीरियड फॉर जवाहरलाल, एंड सारे जो थे इसके खिलाफ हो गया। प्रेसिडेंट ने कहा इसको सेंश्योर कर दो, ही केम टू वी हैव फेल्ड, आई एग्रीड। अब इसमें प्रेसिडेंट फिर क्या कर रहा है? नो, दे ब्रॉट शास्त्री जी, बिकॉज सीधा इंदिरा गांधी को नहीं ला सकता था। सो शास्त्री जाता, ही बिकेम मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। इनफैक्ट ही वॉज लुकिंग आफ्टर द होल प्राइम मिनिस्टर्स वर्क। उसकी भी रशिया में डेथ हो गई। पंडित जी की 64 को ख़त्म हो गए, और 64 के बाद शास्त्री वाजी नेचुरल प्रोसेस हुई इलेक्टेड। 64 में भी जब 80 यानी कि आई ट्रेवल टू इलाहाबाद इन दैट 80 स्पेशल माई सेल्फ। एक ट्रेन का डब्बा था, बिल्कुल सारा वाइट करके रखा था उसमें, एंड ही डाइड a miserable death. After this, Shastriji took over. When Nehru died, what was the actual reaction of the public? Kitna grief, sorrow? They were disgusted, because they also knew कि ये गलत किया था, जो आर्मी को इसने इग्नोर कर दिया। He sent them to the barracks. आर्मी को कोई फ्लीट नहीं दिए, कुछ नहीं दिए गए। तो नेचुरली जो भी enlightened public थी, they were not happy with that decision. Of course, they were not happy of his death. लेकिन ये जो था, certainly it was popularity कम होने का एक फैक्टर कहीं ना कहीं। Virtually he admitted कि we have failed, और इससे ज़्यादा क्या करेगा को। Then शास्त्री जी, मैं रेलवे स्टेशन से हम आ रहे थे इलाहाबाद से वापस, शास्त्री जी, मैं और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, न्यू दिल्ली VIP प्लेटफॉर्म है रेलवे स्टेशन का, उधर से शास्त्री जी ने कहा इंदिरा गांधी को, आपको मेरे साथ कैबिनेट में शेयर करना होगा। शी स्नब्ड, आई एम इन ग्रीफ, डोंट टॉक ऑल दिस। मेरे सामने शास्त्री जी की बेइज्जती कर दी। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, शी वॉज इन ग्रेट अगर। शास्त्री जी आगे चल गया, मैं बिल्कुल आगे चला, मैं देख गया। तो उसने लाउडर थिंकिंग में कहा कि मैं फिर रात को विजय लक्ष्मी पंडित को ले आऊँगा। आई कांट रन द गवर्नमेंट विदाउट नेहरूज फैमिली। मैं आगे बीबी गई, look at this. I went with her to Prime Minister's house. मैं I was in 2 minds, इसको बताऊँ या ना बताऊँ। शाम को तुझे गई विजय लक्ष्मी वेलकम, मैंने कहा नहीं यार चलो, एज ए पर्सनल स्टाफ आई शुड बी सिंसियर टू हर।
मैंने नोट लिख दिया. I have heard Shastri ji saying that in the evening Vijay Lakshmi Pandit is going to be inducted in the cabinet. Mrs. Gandhi may change her decision. नथु वासी हमारा पियन होता है, क्या होता है, अर्दी वगैरह. मैं नथु ये बीबी को दिया. जब बीबी ने 4 लाइनें मेरी पढ़ी, शी भी जल्दी रैंक में आप जनक राज जी, शास्त्री जी से टाइम लीजिए, आप मेरे साथ चलेंगे, हमें पानी पी लो. गप्पे नहीं है, बिल्कुल सही बता रहा हूँ. नहीं गप्पे. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इट्स गुड somebody records what I have seen there. सर ये क्योंकि कहीं और रिकॉर्डेड है नहीं. हाँ, मिलेगा ही नहीं. हाँ. सिर्फ मेरे घर से जब तक जिंदा मेरे पास मिलेगा, जब आपके इसमें आ जाएगा. देन शी केम आउट. मैं नंदा था, प्राइवेट सेक्रेटरी. मैं कहा नंदा भाई इंदिरा जी आना चाहती हैं. कहता यार टाइम देने की जरूरत है उनको. चलो, दिस इज हाउ वी वेंट एंड मेट. देन शी कम्स आउट आफ्टर मीटिंग शास्त्री. इसने कहा कि ठीक है, आई एम सॉरी व्हाट आई सेड देयर, प्लीज गिव मी सम लाइटर पोर्टफोलियो. शी वाज गिवन INB मिनिस्ट्री. INB, Information Broadcasting. So work was lighter. When she comes out, she was smiling. I could understand her smile. So this is what I did for her. अगर मैं ना चिट्ठी लिखता, विजय लक्ष्मी वुड हैव बीन, किसी अखबार ने भी कार्य किया है. देन इसी संदर्भ में अमिताभ बच्चन जो था, उसने करोड़ीबाग कॉलेज से BA कर लिया था. ठीक है. तो तेजी जो थी, शी वॉज वेरी क्लोज टू इंदिरा गांधी. मे बी दे माइट हैव बीन क्लासमेट इन यूपी और व्हाटएवर शी. अब BA बात कर रहे हैं कि ये इंदिरा जी के पास है. शी वाज ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर एट दैट टाइम. ही मेट इंदिरा गांधी कि मुझे ठीक है. तो इंदिरा गांधी मेरे पास आई, कहना जनक राज जी, मुझे बताती बड़ी इज्जत से, आई मस्ट से, ये तेजी का लड़का आया है, इसको कहाँ भेजे, कुछ सोचो, नौकरी मांग रहा है. मैं बड़ा सोचा क्या किया जाए. पद्माजा नेहरू वाजी गवर्नर ऑफ अस्पताल. मैंने लेटर एक बना दिया इंदिरा गांधी की तरफ से, पद्माजा नेहरू के नाम. कहीं ये ठीक रहा, मैं गवर्नर हूँ तो 1 मिनट लगेगा. कहती तेजी के लड़के को दे दो ये चिट्ठी, आप कि जाओ क्या करना चाहिए. ये अखबारों ने भी निकाला, अभी मैं दूंगा, लिखा हुआ मेरे पेपर, ट्रिब्यून ने कैरी किया था. He went, he got a job of 900 rupees at that time. Another incident, INB, ये तेजी मेरे पास, मैं काम कर रहा था. Who is with Indira Gandhi today? Don't you see I'm sitting here? We want to tears. प्लाजा में कोई इंग्लिश मूवी सी लगी हुई, वो 2 टिकटें बुक कर दो. मैंने मैनेजर को फ़ोन किया विदाउट टेलिंग किसके लिए चाहिए. उनका साथ सारा फुल है, टिकट कोई नहीं. मैंने तेजू कहा मैं दर्शकों हूँ, इंदिरा गांधी के INB मिनिस्टर को टिकट नहीं मिलेगी. आई प्लीज टॉक टू हिम, आई एम नॉट योर सर्वेंट, नॉट इंदिरा गांधी सर्वेंट, आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, प्लीज गो. इसे कहा कि वो कौन बैठे, बड़ा कहते कौन है, कहते जनक राज जी बैठे. कहते जब भी आओ इससे ज़रा ठीक से बात किया करो. शी केम टू मी. वर्ड बता रहा हूँ, जनक राज जी यहाँ प्लाजा में बहुत अच्छी मूवी आई है, आपने देखी है. मैं कहा अभी तो तेजी बच्चन कह रही थी आपके लिए, वो भी हमें भी टिकट नहीं है. अब डांट रही थी कि अभी. मैंने कहा अगर मैं सारा हाल खाली करवा सकता हूँ, डोंट थिंक आई एम सो इनकॉम्पिटेंट सेक्रेटरी टू यू. लेकिन ये बताओ, कल पार्लियामेंट में सवाल होगा, तेजी बच्चन जवाब देगी कि इंदिरा गांधी देगी. शी फेल्ट के बात तो ठीक है. फिर चली गई, फिर आई.
3 बजे की, मैं 3 बजे की हो जाएगी। मैं मैनेजर को कहा भाई बॉक्स में 4 होते हैं शायद, उसमें और कोई नहीं बैठेगा, 2 आएंगे एंड आई एम सेंडिंग दी मनी। मैं बिल्कुल नहीं, आई सेंड दी मनी। नथु को कहा ये बेटा पैसे ले जा, एंड दिस इज हाउ आई सिक्योर्ड द टिकट फाइनली। आप पूछो। अब सर हमें थोड़ा सा हम और फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और अब आ जाएंगे इमरजेंसी एरा। हाँ। तो सर इमरजेंसी एरा में मतलब आप पब्लिक सर्वेंट थे एक तरह से, आप गवर्नमेंट सर्विस में रहे, गवर्नमेंट सर्विस में रह के प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करना, फिर इंदिरा गांधी को भी एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना कहीं ना कहीं, और एकदम से लगानी की लाइफ कैसे चेंज हो गई एकदम से, यू लैंडेड अप इन प्रिजन। सो वो जो आपकी प्रिजन तक 75 में आएगा प्रिजन का। हाँ मैं वही, हम वही उससे पहले मैं आई जॉइन लीगल प्रोफेशन कैसे किया। हाँ सर लीगल प्रोफेशन की भी बात करेंगे हम। मैंने आपको बताया था हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, तो अब जो हमारे अगले क्वेश्चन आ रहे हैं 1-2 वो इमरजेंसी एरा से रिलेटेड। हाँ मैं इमरजेंसी के एरिया में बताऊंगा, बट व्हाई आई नेवर रिजाइन। I felt suffocation. I felt all people are corrupt at the highest level. Not only this, I was in charge of the store जहाँ बुशट, शराब, ये गुड़ सब आता था। एक ले में भेजना था हमने हवाई जहाज। बीबी अब्दुल सलाम वाज सोशल वर्कर फ्रॉम राजगाज में था, शिवाजी वो हवाई जहाज भरा। वहाँ जब हवाई जहाज पहुँचा वो बिल्कुल रोडे पर दमन वगैरह मेरे को सारा कुछ निकाल दिया। फिर वहाँ से सामान साइफरिंग हो। एक दिन मेरी दराज में इन्होंने 6 बुशटें रख दी दमन ने। मैं जिंदा इधर आ, मैं रामजादे चुक इनको ले जाए यार, शट अप। So I was an eyesore in Daman's eyes also. I told her that this has happened. What she says, Janak Raj Jai, मुझे पता क्या कुछ हो रहा है, please don't write me checks. मैं कहा, she doesn't mind right. So all these things gathered. मैं चाबियाँ फेंक दी, मैं कहा then I'm not going to be in charge of this store. So all these things made me to resign. मैंने लॉ कर लिया था वहीं ड्यूरिंग माई सर्विस। देन आई जॉइंड नवनीत की चैम्बर सुप्रीम कोर्ट में 12 नंबर चैम्बर थी। आई जॉइंड हिम। सो दिस इज हाउ आई केम लीगल प्रोफेशन। तो सर बोल रहे हैं एक तरह से कि उन्होंने देखा कि कैसे करप्शन बहुत इमर्ज हो रहा था और इंडिपेंडेंटली आप अपनी सर्विस नहीं कर पा रहे थे किसी भी रीजन की वजह से, बट ही जस्ट वांटेड टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। किसी के फेवर कोई जीपीएफ नहीं लिया, कोई पर्ड लीव का कुछ नहीं लिया, कोई भी मैंने नो बेनिफिट नहीं लिया। वो कह रहे कि विद इन 7 days हाउ कैन, मैं आई विल नेवर कम। तो मेरा क्या कर लोगे? आई डोंट वांट टू क्लेम एनीथिंग। मेरे घर रोज लड़ाई होती थी, अपने जो डूबे वो तो ले लो, मैं लेना ही नहीं, मैं पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। सो आई जॉइंड लीगल प्रोफेशन इन 1969। तो लीगल प्रोफेशन में तो इंडिपेंडेंस बहुत फील होती है हर किसी को, वहाँ तो कुछ है नहीं। वहाँ भी मैं कांग्रेस सिंबल केस में इसमें सारे में आई यूज्ड टू बी देयर। और ये सिद्धार्थ शंकर हेज वाज आवर लीडर, और कन्हैयालाल मिश्र था एडवोकेट जनरल यूपी का, ही भी यूज्ड टू एंगेज हिम। कांग्रेस सिंबल केस में मैं पेश होता रहा। फिर शादरा बार से भी आप? हाँ, मैं शादरा भी चला गया ना, बिकॉज आई हैड सम पॉलिटिकल विजन कि इलेक्शन लड़ूंगा, ये करूँगा। देयर आई वाज प्रेसिडेंट 2 साल, एंड आचार्य भारद्वाज वाज माय कैंपेनर। वो टिकट लेके मेरे लिए, हम 4 थे, हमें फ्लाइंग स्क्वाड कहते थे में। मैं तो कृष्णलाल शर्मा और इनायतुल्लाह, आचार्य भारद्वाज एंड माई सेल्फ, वी वर 4 पीपल। हमने यहाँ भी कांग्रेस की जड़ें खोदने की कोशिश की थी कि दे आर करप्ट, तो हमने बल्कि एक मीटिंग शुरू की जिसमें इनको नंगा करने की कोशिश की थी। देन मेरे खिलाफ इन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटी में नोटिस भी दे दिया, मुझे निकाल भी दिया। तो अब एक तरह से सेकंड फेज था लाइफ का, जब आपने रियलाइज कर लिया था कि अब गवर्नमेंट सर्विस और नहीं, सवाल ही नहीं पैदा अब लीगल प्रोफेशन में रहूंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना है मुझे, और यहीं पे जितना काम करना है करना है। यू रोज टू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द शाहदरा बार। यस, 2 दफा रहा हूँ, 2 times।
आपने एस्टैब्लिश कर ली अपनी प्रैक्टिस अच्छे से 100%। कोर्ट में। आज की तरह बहुत डिफिकल्ट था क्या, क्योंकि आप भी वहाँ पे एक तरह से फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट थे आप भी कहीं? Yes, yes. तो वाज इट सो डिफिकल्ट टू गेट क्लाइंट्स, टू बिल्ड अप योर No, प्रैक्टिस, I टू got one लर्न? senior, नवनीत लाल। वो असम गवर्नमेंट का एडवोकेट भी था, और ये था फखरुद्दीन अहमद वाज रिमेम्बरेंसर, जो पहले रिमेम्बरेंसर होते थे। एंड उसके साथ हमारा, मैं कई दफ़ा पे मुझे लेके भी गए फखरुद्दीन के साथ पास। आई वॉज एट द राइट प्लेस फॉर दैट पर्पस। फिर अल्टीमेटली मुझे नवनीत लाल ने कहा, राज मुझे कहता था, राज भाई देख बात सुन, या वकालत कर रहे हैं या पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं कहा बाबू जी मैंने तो पॉलिटिक्स करनी है। देन आई शिफ्टेड टू शाहदरा सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ फिर मैं। तो कहीं ना कहीं मतलब आपको अंदर से लगता था कि इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम, यस, तो आपको कहीं ना कहीं पावर में आना I पड़ेगा। met with a lot of failure in politics because nobody likes upright men. She brought poll expenses ordinance. Poll ordinance ये होता है कि इसने ला बना दिया था, मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आप 10 करोड़ मेरे ऊपर खर्च करके तो गिना नहीं जाएगा। Candidate himself cannot spend beyond that limit. That rate was admitted. Notice was given. फिर मेरे घर इंटेलिजेंस बैठ गई, इंदिरा गांधी did that. Then somebody told me कि पंगा मत ले, अब तुमने इशू उठा दिया है। Another issue which I took as lawyer, दिल्ली हाई कोर्ट में not more than 1% should contest for one constituency. और आगे ये था कि 40 आदमी भी एक से 40 सीटों से भी आप लड़ सकते हैं। सारी सब्रवाल के पास लगी, वही के सब्रवाल। मैंने कहा जज साहब एक चीज़ बताओ, एक बहुत बिलियनियर आदमी सारी सीटों से लड़ जाता है, क्योंकि लाया ही नहीं कि मैं पार्लियामेंट कौन चाहेगा कि तो नोटिस दिया। सेशन वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ही वाज विद मी। हाँ, टी एन सेशन वाज विद मी। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, कह रहे जाए 2 राय हो यार, ये मेरे से ही बना के अब 2 का हुआ है। अच्छा, तो ओपन कोर्ट में। तो इसके ओरिजिन का क्रेडिट हम आपको दे सकते हैं कि अब कोई भी एक कैंडिडेट 2 सीटों से ज्यादा से नहीं लड़ेगा। आपको ये ट्रबल लगा कि ये क्या हो रहा है भाई, 40 सीटों से, मतलब जितना पैसा है, फिर तो दैट मीन्स मनी इज कंट्रोलिंग ना। अगर मनी फैक्टर आपका अप है तो फिर आप जितनी जगह से लड़ो जीतोगे कहीं ना कहीं से। पब्लिक सर्विस, एडवोकेसी, इलेक्शन लड़ लिया, बहुत कुछ कर लिया अभी तक तो आपने लाइफ में। आपके 2 एक तरह से हम डिफरेंट वर्जन्स देख चुके हैं। फिर उसके बाद टाइम इन जेल, स्पेंडिंग टाइम इनसाइड द प्रिजन, वो प्रिजन तक आप आए कैसे? आपका एक लेटर था जिसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप बताओ, जो आपने इंदिरा गांधी जी को लिखा था ना। हाँ। उससे पहले 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी डिस्ट्रॉयड द जुडिशियल सिस्टम, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन इसने किया है। 1973 में फंडामेंटल राइट्स पर शैलत, ग्रोवर और हेगड़े, इन्होंने जजमेंट दी थी जो गवर्नमेंट डिडंट लाइक। 1973 she superseded through AN Ray was brought there। सारी कंट्री की बार ने हंगामा कर दिया था और शागला ने लीड किया था। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट बार बंद हो गई थी इसमें, and she had to eat a humble pie. This is how 73 में फिर कुमारा मंगलम wanted committed judiciary, वो हवाई जहाज ही मर गया। So she tried to grab power, और एमरजेंसी में के बाद, एमरजेंसी बाद में आती है ना, उसके बाद ये रुकी नहीं, और इसने इलाहाबाद इलेक्शन जब हो गई, नाउ इज दैट
she lost the election to Raj Jai. रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसमें क्या हुआ था, यशवंत कपूर वाज हर OST और उसने रिजाइन नहीं किया था, एंड एज गवर्नमेंट सर्वे ही कुड नॉट बी हर सुपरवाइजर विदाउट रिजाइनिंग। हाँ, तो अल्टीमेटली what has happened, she lost the matter right to JML सिन्हा। JML सिन्हा को अप्रोच किया गया और he didn't succumb to the pressure। उसने हाथ से जजमेंट लिखी और अपने पीए को कहा तुम दिल्ली छोड़ के चले, इलाहाबाद छोड़ के चले आओ, तुम्हें मार देंगे। So there she was held guilty on 6 points। नानी पाल के बारे जो था उसने कहा कि we are safe, don't worry। When the matter reached to Krishna Iyer was the interim vacation judge था। गोखले was the law minister। गोखले टेलीफोन कृष्णा Iyer, sir we want to meet you। कृष्णा Iyer ने कहा what for? नहीं आज हम डाल रहे हैं ना, इधर डाल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में मैंने आओ, आई डोंट वांट टू मीट यू एज ए जज, मैंने तो जजमेंट देनी है। ही वाज द लॉ मिनिस्टर। वो जब बरुआ इसने कहा इंडिया इज इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। जब ये निकल के आए और जब ये ठाकुर मिल के गया, ठाकुर ने कहा आप एमरजेंसी में रहिए, यू विल विन। नानी बात की बात है। जब वो बाहर आया ये तीनों उसको झपट पड़े, तुमने क्यों गलत एडवाइस दी? शराब, हु आर यू टू कांट से दिस थिंग? ही हैड टसल विद हिम, बट अल्टीमेटली emergency was declared and lakhs of people without knowing the hows and whys of their life. There I wrote a letter to her that you have imposed emergency. If I find the list of corrupt, you are at the top। 6 pages letter था, it was published outside India also। On that a meeting was held, high officers, they decided to arrest me। इसका जिक्र किया है PMO डायरी में बिशन टंडन ने। उसने अच्छा बिशन टंडन जो था जब एमरजेंसी लगा दी, he said PM Bell another secretary was brought to look at his work। कहता मेरा क्या मतलब है, PM Bell को ये ले आई है। उसके बाद में से 2 वॉल्यूम में PMO डायरी लिखी, उसमें आई मेट हिम। मैं कहा भाई सेकंड वॉल्यूम चाहिए, फिर मैं दूँगा नहीं, एक कापी है, जो ले जाता देता नहीं। ही रिफ्यूज टू गिव, नोएडा में रहता है, वेरी नाइस पर्सन। डिप्टी कमिश्नर था पहले, यहाँ कमिश्नर भी आती थी। देन ही वाज सेक्रेटरी टू इंदिरा गांधी, ही रिजाइन। आफ्टर दैट ही रोट 2 बुक्स, उसमें मेरा जिक्र है काफ़ी। आपके लेटर का भी है, आपने अपनी बुक में भी लिखा ना। तो ही सेड कि जब ये मीटिंग हुई थी वही इट वाज डिसाइडेड इंदिरा गांधी ने कहा अरेस्ट करो। सो अंडर हर इंस्ट्रक्शन आई वाज अरेस्टेड। सर आपकी फैमिली को भी काफ़ी दिनों तक नहीं पता। उस वक्त में इसमें मेरे चार्ज क्या लगाया मेरे ऊपर 110G CRPC पढ़ना, हैबिचुअल गुंडा, डेस्परेट, a danger to the society, a president of the bar। मैं अपील हो गया। RS सेठी वाज द HDM, अब सेक्रेटरी हो गया था कश्मीर में, अब मर गया शायद, कई मार दिए मैंने। कहता मुझे चैम्बर में बुला लिया है, कहता जय साहब मुझे पता आप प्रेसिडेंट हैं, यू आर मोस्ट रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ दी बार, या तो मैं अपनी नौकरी गवा लूँ या आपको बेल दे दूँ। 40-50 बेल बॉन्ड लगाए गए। उसने कहा आप सारी बार कर दो, मैं नहीं कर सकता, मुझे ऊपर से हुक्म है, बिकॉज पुलिस वॉज रूलिंग
दैट वाज द टेरर। यू नो अरेस्ट के लिए भी जो है इन्होंने पहले ही 10 के बैक डेट में करके दे रखे कि जिसको मर्जी अरेस्ट कर लो। अच्छा हाँ। कितने भी अरेस्ट कर शार्क लो मिशन ने आपके कहा पास है, ऑर्डर्स हैं। शार्क मिशन रिपोर्ट ने कहा है कि दे हैड ऑलरेडी रिटन द डेथ वारंट्स गिवन टू द पुलिस जिसको मर्जी पकड़ लो। हाँ जी। एंड यू नो व्हाइल डिस्कसिंग इन प्राइम मिनिस्टर डिस्कसिंग ऑन एमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट ने, अब मैं इधर उधर हो रहा हूँ, चीज़ें याद आ रही है आप उसको, जजेस ने कहा if a constable shoot anybody, has that person any remedy? He said no. So long as emergency is there, he can't. There is no remedy. सर आप तो उनकी बात कर रहे हैं जो आपको बेल नहीं दे पाए थे। हाँ। इनफैक्ट जब जस्टिस खन्ना ने भी बोला था कि मैं इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट देने वाला हूँ। मैं अभी बताता हूँ। हाँ। हाँ। वो he was जब उसकी बारी आई थी चीफ जस्टिस बनने की, ही वॉज द टॉप मोस्ट पर्सन। उसको 5 बजे तक नहीं पता था कि कल मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। मैंने अपना कोट लटका दिया, रोप्स रख दी थी साइड कि पता नहीं कल आऊँ कि नहीं आएगा। ही कुड सी दिस एंड इंदिरा गांधी डिडंट अनाउंस बिकॉज एचर खन्ना ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स आर अलाइव इवन इन इमरजेंसी। यस No visa, no other law can be above this law. And this was the dissenting judgment. यस और बेग था वन ऑफ द pliable जज, उसने कहा हमने प्रिजनर्स को दामाद की तरफ रखा है, मौज ले रहे हैं, करोड़ों रुपए इन पर खर्च कर रहे हैं, ऐश लूट रहे हैं ये जेल में। MS बेग 235 नंबर पैरा है जजमेंट का, उसमें उसने लिखा है कि वी गेव देम मैटरनल ट्रीटमेंट। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, 5 बजे कहता मैं घर गया, रेडियो सुना, तब मुझे पता लगा कि आई एम नॉट इन। उसी वक्त उसने उसका प्राइवेट सेक्रेटरी था बतरा, देखो दिमाग में आ रहा है ना, याद है आपको। ही कॉल्ड हिम हाथ से, बिकॉज जनरली whenever the judge resigns he writes in hand and एक बार दे के वापस नहीं ले सकते। He sent and he resigned. सर व्यूअर्स के लिए मैं बता देती हूँ कि उस टाइम पे जो सीनियर मोस्ट पर्सन थे वो जस्टिस खन्ना थे, बट जस्ट बिकॉज ही हैड जस्ट गिवन अ डाइसेंटिंग जजमेंट व्हिच वाज अगेंस्ट मिसेस गांधी, जो मिसेस इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थी, उनको एक्चुअली अपॉइंट नहीं किया गया, जो कि एक कन्वेंशन था, जो कि एक रूल की तरह फॉलो किया जाता है। सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाया जाता है, उनको नहीं बनाया गया। अब कहीं तक उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात थी, उन्होंने उसी टाइम पे जैसे सर ने बताया उन्होंने लिख दिया अपना रेजिग्नेशन और दे दिया, राष्ट्रपति भवन भेज दिया। सर आपने लिखा था, आपकी बुक में भी लिखा था, सर ने एक रिकाउंट करने की कोशिश की थी अपनी बुक में भी, कि जब वो जजमेंट देने वाले थे उससे एक दिन पहले मैंने अपनी बेटी को कहा था, बहन को शायद संतोष का नाम, उनकी बहन थी, बहन थी, कि दिस जजमेंट विल कॉस्ट मी माय चीफ मिनिस्टरशिप। कहता देन we were dumb and we retired to bed, है ना। I have a feeling कि कल से मुझे इन रोब्स की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। MS बेग was appointed, जिसने कहा था कि हमने जवाइयों की तरफ रखा है, इनको मौज ले रहे हैं, कितना हमारा खर्चा हो रहा है इन प्रेसिडेंट्स पर, they are enjoying। How was your treatment in the jail? सच में जमाइयों की तरह रखा हुआ था? जेल में 6 महीने तक, 4 महीने तक मेरे घर को नहीं पता मैं कहाँ हूँ। Nobody was told about this. So इतनी अच्छी खातिरदारी कर रहे थे क्या कि हम नहीं बता रहे, हम अच्छे से रखा हुआ है सबको। जब अंदर डेटेन्यूज ने हल्ला शुरू किया, मारना, घंटी बजाई, सब कुछ किया, तो कहने लगे हमारे साथ तो भी इंदिरा गांधी मुर्दाबाद। मैं दिस आई वोंट सी, आई हैव नॉट कम विद यू, माई issue is different than yours. Anyway, that was not thing. वहाँ पर जब इन्होंने शोर बजाया, I think it was 26 जनवरी, if I am not correct, तो लाठी चार्ज इसने करवा दिया। RN रामनाथ शर्मा वाजी सुपरडेंट जेल, इसने क्या किया, जेल के जितने भी हार्ड एंड क्रिमिनल्स हैं उनको खोल दिया, तो बेल्ट लेकर मार रहे सबको। आई हैड ए नैरो एस्केप, मैं अगर अली घुस गया जाके, अगर आई वुड हैव किल्ड। बहुत सारे
डेटिन जो थे देवर, फिर उसकी इंक्वायरी वगैरह भी हुई. देन देयर वाज ए बवेजा कमीशन. आई अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द डेटिन्यूज. वहाँ भी गवर्नमेंट वाज ऑन द रॉन्ग साइड. तो दिस इज हाउ जो था. फिर आपको ट्रीटमेंट मिलता ही नहीं था. 15-20 जो प्रिजनर जो थे, पॉलिटिकल लीडर जो थे, वो वही मर गए इन द एब्सेंस ऑफ treatment, medical treatment. So this is how they were treated in the jail. But कोई मिलने के लिए भी आपको you have to go to ADM, and then there were many restrictions for that things. तो इसलिए ये बड़ा. then एक वहाँ पर क्या हुआ कि जिन्होंने जो जितने बच्चे थे ना उनको उन्होंने पकड़ के अंदर कर दिया और उनको हमें दे दिया. क्योंकि हर 4 पॉलिटिकल प्रिजनर को एक शक्ति मिलता है. शक्ति वो होता है जो रिकॉरेसिव इम्प्रिजनमेंट में जा रहा है. लेकिन इन्होंने थोड़ा बीजेपी वालों ने पैसे दे के जनता वालों ने अरेंज कर लिया कि हमें तो मुंडे दे दो. सो दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड देयर आल्सो. आई फाइंड अ रेट पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट. तो मैंने कहा कि ये बहुत बुरा हो रहा है और दे आर एज गुड अंडरड्राइज एज वी आर. यू कांट टेक वर्क फ्रॉम अंडरड्राइज बच्चों को. तब वो बड़ी मुश्किल से वो विदड्रॉ हुए थे और सुपरटेंडेंट कहता कि जी मत लिखा को. मैं कहा आई राइट अगेन दैट यू आर सेइंग दैट. सो दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. इट्स अ वेरी 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 बैड एक्सपीरियंस. देन नॉट ओनली दिस, जब लाठी चार्ज हुआ था हमारे साथ वाले में बादल, चरण सिंह, अडवाणी नहीं थे, 2-3 और थे. जब अवेजा केशन में ये होम मिनिस्टर हो गया था बाद में ना, चरण सिंह, ही गेव एन एफिडेविट इन विच ही हैड सेड कि यस वी हर्ड द वॉइस, वी हर्ड ऑल दिस थिंग एंड वी कॉल्ड द सुपरटेंडेंट. ही अपोलोजाइज्ड फॉर दैट. लाठीचार्ज हुआ था और काफ़ी जख्मी आदमी हुए थे. कुछ को शायद कंपनसेशन भी बाद में दी है. दिस इज हाउ वी वर ट्रीटेड इन. सब मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं दे रहे कुछ नहीं. Were prisoners also being deprived of food, basic food facilities, clean water? Yes, yes. सब. और बैटर का जो लाइव वायर थी 2-3 तो वही लुट गए. बड़ी मुश्किल से कोई बारिश आती है तो पानी देवर nobody was caring. This is how the prisoners were. Not here, throughout the country. जेपी को अरेस्ट कर लिया रात को 1:30 बजे और उसने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि. और मैंने वो सारा लिखा है जो इसमें भी है कि किसी को फिर कांग्रेस लीडर्स को भी कर दिया. सर जयप्रकाश नारायण की बात कर रहे हैं जो उस टाइम पे बहुत पॉपुलर है. जेपी को फिर क्या किया, दे डिटेन्ड हिम चंडीगढ़ में. एक IAS officer था, he was in charge of prison. He said there was a conspiracy to give him slow poison so that should die there. लेकिन उसको किडनी ट्रबल हो गई बहुत ज़्यादा. He had to be shifted to Jaslock hospital. तो उसने कहा जो प्रिसन का हेड है उसने कहा आई वॉज रिलैक्सड कि कम से कम यहाँ तो मौत नहीं उसकी हुई. और देखिए कितना डर था. The President of India was afraid of Indira Gandhi during emergency. जब emergency लगाई थी किसी को बुलाया नहीं. कैबिनेट को 6 बजे कुछ बुला दिया कि रूल 12 के अंदर मैं बाद इनको बता दूंगी. और ये एक ड्राफ्ट में डाल के होम मिनिस्टर हैज़ टू इशू, क्योंकि इट इज़ द होम मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव टू डिक्लेयर इमरजेंसी. वो रेडी करके था वो. एक तो ओम मेहता था, वो डिप्टी होम मिनिस्टर था. दूसरा था परमानंद रेड्डी, ही वॉज समन्ड. उसको कहा कि लिखो कि देयर इज ए नीड ऑफ इंटरनल इमरजेंसी. डिक्टेट किया. कहता है लेटर या डीडी को कागज पर ही लिख दो. ही वॉज फोर्स्ड टू राइट
धवन को बोला कि ये लेटर प्रेसिडेंट के पास ले जाओ, और शायद सिद्धार्थ शंकर भी गया उसके साथ, कि नहीं भाई कैसे था, और प्रेसिडेंट कहा कि मुझे 1 मिनट तो दे दो मुझे, देन यू ऑल्सो विल गो टू जेल, साइन करो, emergency. So that question he was asked to. Number 2, president का बताऊँ, he went to meet some patient in जसलोक हॉस्पिटल. तो डायरेक्टर जो था उसने कहा सर JP is in this room. उसने फिर चल 2 बार 3 बार जगह गुजरा, देन ही जस्ट बिल्कुल डरते डरते उसकी हेलो हेलो करके, मतलब ही वॉज अफ्रेड कि इंदिरा गांधी शुड नॉट नो दैट आई मेट JP. दिस इज ऑल वाज हैपनिंग. सर देयर इज अ सेइंग ना, हम अपने सब बड़ों से सुनते हैं घर में कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं. सो अभी आप इंदिरा गांधी जी के बारे में बता रहे थे ना, शी वाज सो पोजेसिव. मैं उस टाइम पे आपको मूवी करने की कोशिश कर रही थी कि इनकी पोजेसिवनेस यहाँ तक आ गई. पता नहीं शायद उनके खुद के फादर ने नहीं सोचा होगा कि मेरी बेटी की पोजेसिवनेस उसे यहाँ तक ले आएगी. शी विल बी सो पोजेसिव अबाउट इवन पावर, इवन स्टेइंग इन दैट सीट. संजय वाज आउट एंड ऑल, ही वाज डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर, और आई के गुजराल वाज INB मिनिस्टर. संजय ने उसे कहा कि जो आप न्यूज़ बुलेटिन करते हैं पहले मुझे दिखा लो. उसने कहा हु आर यू, आस्क योर मदर टू टॉक टू मी. राइट. उसने बोला माँ को कि द सेकंड शी सेड एंड इन हिज प्लेस विद्याचरण शुक्ला के INB मिनिस्टर, वो इनका बिट्टू ही था. ही वॉज ब्लू बॉय ऑफ दिस फैमिली. इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया. सो दिस इज ऑल, किसी को नहीं छोड़ा इसने. सर एक और मेजर इंसिडेंट हुआ था इस टाइम पे, इस टाइम से तो थोड़ा आगे, जिसके बारे में हमने भी हम सब ने अपने किसी ना किसी बड़ों को बात करते सुना होगा. इनफैक्ट माय फादर वाज इन गवर्नमेंट सर्विस, ही वाज इन द इंडियन रेलवेज. माय ग्रैंडफादर, आई एम सॉरी. तो मेरी ग्रैंड मदर भी बताती है, शी इज विद अस, कि उस टाइम पे एक स्टेरिलाइजेशन ड्राइव बहुत चला था. तो हाँ, मैं बताता हूँ उसका. अच्छा क्या मैं बताया, गांव में कोई भी कार आ जाती है कि ओए नाशपाती वाले आ गए, नाशपाती वाले आ गए, भागो भागो, चाहे कुछ भी हो. ये संजय के साथ 5 पॉइंट प्रोग्राम, भगत वास अनदर, सो मच सो प्रेसिडेंट हाउस में भी नाशपाती गिरा दी. जामा मस्जिद का जो था इमाम, उसने कहा नाशपाती ठीक है. शायद इतना मतलब द रेन ऑफ टेरर होते हैं. तिहाड़ जेल में इंस्ट्रक्शन थी कि कम से कम 10-15 रोज नाशपाती करो. इन्होंने क्या किया किरण, जो शादीशुदा भी नहीं थे उनको भी कर दिया. 75 रुपये देते थे. वो वार्डन जो था इनको 20 या 30 देता था, बाकी आप रख लेता और चपेट मारता था. चलो, तो इन्होंने नाशबंदी जोरों से किया तिहाड़ जेल के अंदर. इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है. सर रुखसाना सुल्ताना, हाँ, रुखसाना सुल्ताना जो थी, she was in the top gear. संजय की चाहती थी. There were many stories between संजय and him. जब भी ये नाशपाती में उसका भी बड़ा हिस्सा था, जब भी ये तिहाड़ जेल आती थी सारा गेट खुल जाता था इसके लिए, सब सलाम करते थे. दिस वाज हर पोजीशन. एक चीज़ भूल के बताना कि लॉ मिनिस्टर जो था, जब एमरजेंसी खत्म हो गई, ही मेट मिशन टंडन. मैं जब मिलने गया तो ही नरेटेड वन स्टोरी. कहना लॉ मिनिस्टर आए थे तो इंदिरा गांधी को गालियाँ दे रहे थे कि ऐसे बहुत गलत किया जी. कहना मैंने कहा सर यू आर दी लॉ मिनिस्टर, आप क्या कर रहे थे. कहता देख भाई बात से टंडन साहब, मैं जेल नहीं जाना चाहता था, मुझे जेल भेज दी थी अगर मैं. दिस व्हाट ही सेड टू हिम, ही टोल्ड मी. दिस वाज ही. और ये बाथरूम में मर गया फखरुद्दीन अली. हाँ, ही डाइड आउट ऑफ शॉक. उसी बाथरूम में जाकर साहब में मरा. सो दिस इज रेन ऑफ टेरर.
You can't forget it. This is the darkest period I've ever seen. You know, और मज़े की बात यह है, आपका फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? बहुत सारे थे सर। रमन्ना। अच्छा, उसने कहा कि मेरे बाप ने कहा तुम भाग जाओ, पकड़े जाओगे, सो आई लेफ्ट माई हाउस। इससे और बड़ा टेरर क्या हो सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही स्पोक ऑन द लॉ डे, आई हर्ड माई सेल्फ। किसी को छोड़ा ही नहीं इसने। मतलब या तो आप चुप रहिए, हाँ। बोलेंगे तो आप एनीथिंग कैन हैपन, अब गए, यू कैन बी किल्ड, यू कैन बी सेंट टू जेल, आपके वेयर अबाउट्स भी नहीं अच्छा, पता। यहाँ हमारे घर रात के 2 बजे 3 बजे आ जाते थे देखने, और अल्टीमेटली एसपी जो था मेरा अच्छा जानने वाला है, उसने कहा कि बीबी जी बात यह है, कल हमें हुक्म है कि आपका घर सील कर दिया जाएगा, आप सड़क पर फेंक दें। दैट शी टेलीफोन मी कि आप खुदा के आवाज़ से जेल चले जाओ, आई वाज अंडरग्राउंड। सो आई टेलीफोन एसपी, एक सेशन चलता मेरा अच्छा दोस्त था, उसने कहा देखो भाई उसको छेड़ना नहीं है आपने। सो दैट वो हाई कोर्ट जज रिटायर होकर मर गया RS गुप्ता। तो आई सरेंडर, तो मैंने कहा सारे घर वाले सड़क पर आ जाएंगे। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग, क्या करूँगा। सर इंडीड इट वाज द डार्केस्ट पीरियड, सच में डार्केस्ट पीरियड था जितना हमने देखा, हमने सुना। इट वाज द डार्केस्ट पीरियड, शुड नेवर रिपीट अगेन। अब ये कहते हैं इमरजेंसी जैसे लगा ली, बकवास तो कर सकते हो यहाँ, यू कोट अटर बर्ड। और जॉर्ज फर्नांडिस के लड़के को इतना मारा, इतना पजामे में उसमें सारे दिल्ली के सब कुछ टांगे तोड़, ही वाज बीटेड ब्लैक एंड ब्लू सब जगह। और ये जो आपका जगमोहन है, सुबह आ जाता था प्राइम मिनिस्टर हाउस, वो बता देता था संजय तुर्कमन गेट तोड़ा दिया, ये LG था उस वक्त, और ये स्लिप में लिख जाते थे, रात को फिर दस्तखत करके भेज देता था। ही वाज दिया शाहपुर चक में कौन जाएगा लेडीज़ का, वहाँ एक कुआं था, वो शाल मार के मर गया। द लेफ्टिनेंट गवर्नर वेटेड सुसाइड, ही कुडंट टॉलरेट ऑल दिस। बहुत सारी चीज़ें हुई। हाँ सर, अब आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं। मतलब ये थोड़े हमारे अब एंडिंग की तरफ के क्वेश्चंस हैं कि हमने इमरजेंसी डिस्कस कर ली। अब आपकी लाइफ का एक नेक्स्ट फेज, जो जहाँ से हम लोग ने आपको जानना शुरू किया। आई गॉट टू नो यू फर्स्ट एज एन ऑथर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड नो इम्प्रेशन अबाउट सर। मैं सर को देखा करती थी इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी में, व्हेन आई वाज स्टडिंग लॉ। ठीक है, उस समय पे मैंने देखना शुरू किया कि आपने बहुत बुक्स लिखी, बहुत कुछ लिखा। उसमें से ही वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स, वन ऑफ द फर्स्ट वर्क्स दैट आई गॉट टू नो ऑफ वाज रिलेटेड टू डेथ पेनल्टी। हाँ, कहीं ना उस टाइम पे हमारे माइंड में इम्प्रेशन कुछ था। जब निर्भया इंसिडेंट हुआ, आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड एंड वी ऑल वर 9th-10th स्टैंडर्ड, वी ऑल वर डीपली अफेक्टेड बाय इट। अब हमें उस समय पे जो लग रहा था ना, एक बच्चों की तरह से या जैसे भी, कि डेथ पेनल्टी तो है जो हाईएस्ट पनिशमेंट, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट आप दे सकते हो, इससे ज़्यादा क्या दोगे। और इन्होंने इतना बुरा किया, इतना बैरबैरिक किया, तो इसके लिए तो डेफिनेटली डेथ पनिशमेंट अवार्ड होनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड होनी चाहिए। बट from your work, it seems that you are averse to the idea of capital punishment. So sir, if not capital punishment, then what? What is your suggestion? I tell you, when I wrote this death penalty book, the President of India called me to Rashtrapati Bhavan, and he talked to me कि अगर इनको डेथ पेनल्टी देगी तो क्या होगा। तो मैंने कहा सर, जो गिव मी टाइम, I'll write in detail. क्वेश्चन ये है कि डेथ पेनल्टी जो है कौन देता है? Who gives death penalty? सुप्रीम कोर्ट। जी। सुप्रीम कोर्ट में खुदा तो नहीं बैठे हुए, they are subject to error. Yes. And once death penalty is given, can you bring it back? No, there is no going back. There were cases जहाँ एक जीता सिंह मर्डर केस हुआ था, उसमें 4 थे,
एक की लगी आपके पास, एक की लगी इनके पास, आपने डेथ दे दी, इन्होंने लाइफ दे दी, इन्होंने छोड़ दिया। और जब पता लगा चौथी जब आई हरबंस सिंह की कि सर एक तो चढ़ा दिया ऊपर, उसने कहा ही इज़ नो बियॉन्ड ह्यूमन ट्रिब्यूनल्स, इफ़ ही हैड बीन अलाइव उसको हम लाइफ दे देते हैं। सो इट इज़ जस्ट योर डेस्टिनी किसके पास लगता है। ऑल जजेस आर नॉट। डेथ पेनल्टी पर भगवती ने बड़ा अच्छा कहा कि जो दे शुड बी यूनानिमस ओपिनियन, ऑल द जजेस शुड बी वन। अगर इतना भी हो यू कांट डू दैट। लाइफ दे दीजिए, लाइफ में उनको बार बात निकलने दीजिए और रोज़ इनको शो करिए दीज आर दी पीपल। अब 99 में भी आई हैव नॉट गेट गिवन डेथ टू दीज बॉयज, नो टेल मी व्हाट विल हैपन टू द फैमिलीज। मैंने कहा कि कंप्लेनेंट को भी कंपनसेशन दो, इनको भी कंपनसेशन, कि फैमिली ने क्या कसूर किया है। अगर इफ माई सन बिकम्स ए वैगाबॉन्ड, मेरा कोई अधिकार नहीं है उसके ऊपर, तो ये नहीं होना चाहिए। और प्रेसिडेंट वाज विद मी, प्रेसिडेंट कलाम, हाँ कलाम, उसको ही वाज विद मी, एंड देन ही सेड व्हाट इज द रेमेडी, शुड आई रेफर इट अगेन टू द सुप्रीम कोर्ट, मैं विल नॉट, आई गिव इट टू यू। देन ही रोट ए वेरी स्ट्रॉन्ग लेटर टू होम मिनिस्टर कि इसको डिबेट करिए। मैंने भी उसमें कहा कि इनसाइड और आउटसाइड करिए। देयर इज वन प्रोफेसर AR ब्लैकशीट ऑस्ट्रेलिया का, वो यहाँ आके लॉ इंस्टीट्यूट में 1 महीना रहा। ही रोट ए बुक ऑन डेथ पेनल्टी, किट ऑफ केसेस। उसमें उसने किया है कि 8 जजेस का दिखाया है कि एक जज जो है लाइफ दे रहा है, दूसरा एक्विट कर रहा है, तीसरा डेथ दे रहा है। इफ इट इज सो कंफ्यूजिंग, हाउ कैन यू गिव डेथ? So you mean to say that judges are also human beings, they are subject to Naturally, they can errors? err. और आजकल जो पोलिटिसाइज हो रहा है, अपॉइंटमेंट जैसी हो रही है, लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन कोलिजियम सिस्टम एंड ऑल दीज थिंग्स, सो दे आर नॉट अबाउट। और आपस में ही नहीं है, 4 जज जो है वो भी आपस में मेल नहीं करे कोलिजियम में, दे डिफर। हाउ कैन यू प्ले विद द लाइफ ऑफ द पीपल? इट इज सो क्रूअल कि जो उन्होंने जुर्म किया है, बट इट विल बी मोर क्रूअल टू गिव देम डेथ। They can be good citizens also। अगर ये वाल्मीकि बन सकता है, तो जजेस ने कहा है हिंदुस्तान में, he says कि they are subject to reform। मैं एक्चुअली जेल गया था, आई मेट ऑल दी क्रिमिनल्स हु आर मर्डरर्स। 6 ने कहा कि जान साहब मैंने नहीं किया, मुझे फंसा दिया। नो टेल मी, उसको कौन बचाएगा? सो वेयर एवर देयर इज ए, यहाँ तो पक्की बात है, लैक्स का सारा लैक्स साबुन है, 5 रुपये ही मिलेगा। तो यहाँ तो पता नहीं है किस अकाउंट बिकेगा। What type of judges you are facing? He says it is just your destiny, which way your case well. So that's why I am against it। निर्भय का यही से मेरा स्टैंड था बाद में। कि इसमें बड़ी बहस हुई है, जहाँ भी डेथ पेनल्टी हटा दी है कि ज़्यादा नहीं हुए केस। मतलब कहीं ना कहीं ये उतना डेटरेंट इफेक्ट भी नहीं प्ले नहीं, डेथ का जो है ठीक है, कोई देशद्रोही हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, बहुत हार्डन है, उसमें आप कुछ भी करिए, लेकिन जो आम मर्डर हो रहे हैं आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ एनिमिटी एंड ऑल दीज थिंग्स, डेथ इज नॉट रेमेडी। किसी हालत में भी डेथ रेमेडी नहीं है। अच्छा सर, एक और आजकल बहुत नया क्या मतलब बहुत डिस्कस हो रहा है आजकल एक कॉन्सेप्ट, जुडिशियल ओवररीच। जुडिशरी अपनी लिमिट से आगे निकल रही है, लक्ष्मण रेखा को। That shows there is a tussle between the judiciary and the executive। There has always been a tussle, no? There has always been a tussle, don't you think so? हाँ। But वो कभी-कभी ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हो रहा है, They are not above both। वो how can they know कि मद्रास में, बॉम्बे में, कैलकाटा में क्या इनके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? यू डोंट नो। अच्छा, तो कितनी चीज़ें खुद करोगे? और रोज पॉलिटिकल, ये सारे पोलिटिसाइज हो गए सारे जजेस। डेली यू फाइंड देम इन द प्रेस। जजमेंट कब लिखोगे? केस कब देखोगे? यू आर नॉट टू फ्रेम द लॉज, यू आर टू इंटरप्रेट द लॉ। लक्ष्मण रेखा तो आप कर ही रहे हैं। Actually, according to me, there should be a permanent secretariat, जैसे UPSC है, इलेक्शन कमीशन है, जो क्योंकि ऑल द ईयर राउंड
ट्रांसफ़र होगी, डिसिप्लिन होगा, प्रमोशन होगी, रिटायरमेंट होगी, इसको आप तुम 3 जज कैसे कर लोगे? हाउ कैन यू डू दैट? इट इज़ इम्पॉसिबल. योर हैड्स आर ऑलरेडी सारा कितना एरियर पड़ा हुआ है. यू शुड लुक इनटू दैट. यस यस यस. लेकिन क्या है कि सेल्फ इंटरेस्ट है, मेरा आदमी आ जाए, वो कहता मेरा आदमी आ जाए. दिस बार्गेनिंग गोज ऑन. पब्लिक बढ़ रही है. पंजाबी में कहते हैं सांडों की लड़ाई में खेत का उजाड़ा है. ये सांड लड़ रहे हैं, पब्लिक बढ़ रही है. सर फिर वही बात है ना, बहुत लोगों से मैंने बहुत बार सुना है कि पहले के जजेस कुछ अलग हुआ करते थे. पहले का people have lost faith in judiciary. राइट राइट. Huh? Is that so कि people have lost faith in judiciary? You know, क्योंकि Jawaharlal wanted to supersede one judge. who was that judge, sir? I think पतंजलि शास्त्री को शायद ये नहीं लाना चाहते थे. नंबर 2 पे आप देख लीजिएगा. यू नो व्हाट हैपेंड? सारे जजेस ने कहा हम रिजाइन कर रहे हैं. अब ये संजीव खन्ना 32 आदमियों को सुपरसीड कर रहा है. आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन. आपने कब 32 जजेस के क्रीडेंशियल देखे? गवर्नमेंट ने 32 जजेस के कब क्रीडेंशियल देखे? 2 दिन के अंदर आपने अपॉइंट कर दिया इसको. दैट मीन्स यू हैव कंडेम्ड 32 पीपल. सो हाउ फॉल्टी इट इज? आपसे पूछो कि आप जवाब नहीं ले सकते, कंटेम्प्ट हो जाएगी. हाँ. क्या करोगे? सो दिस नीड्स लॉट ऑफ यू सी डिस्कशन इनसाइड एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट. बाहर सोचने को पूछो. इवन भगवती ऐसी ने बाद में कहा था कि मेरे से गलती हो गई, अगर अब आएगा तो मैं इजाजत नहीं दूंगा. फंडामेंटल राइट्स. हाँ. फंडामेंटल अच्छा, राइट्स फिर केस में जस्टिस सीरवाई ने क्या कहा है? When high courts rose to the occasion, the Supreme Court sank. Yes. Again, he was talking about the fundamental rights. हाँ. Yes. नानी पालके वाले ने बड़ा क्रिटिसाइज किया है. दिस इज आपके एक सिंघवी के बाप ने किया है कि इट इज हिमालयन ब्लंडर. Sir, in fact, जब रूमा पाल ने कहा है थ्रो इट इन द Just- डस्टबिन ऑफ द हिस्ट्री. वेंकटाचलैया ने कहा थ्रो इट इन द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री. व्हाट मोर यू वांट टू डू? इससे ज़्यादा और तुम्हें क्या? लेकिन शर्म तुमको अगर नहीं आती क्या करोगे? सर एक वो भी तो इंसिडेंट था जब केशवानंदा भारती केस हाँ, के रिव्यू yes. को सुना जा रहा था. हाँ. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि क्या हुआ है बेसिक अगर स्ट्रक्चर. हाँ बेसिक स्ट्रक्चर पे कि अगर जजमेंट उनके खिलाफ मतलब आपके खिलाफ भी आई होती तब भी तो हम सुनते ना उतना इक्वली, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो नानी पालकी वाला वाज यू नो he was so in favor of the basic structure doctrine, which I think was right as well. कि उन्होंने बोला था कि अगर ये जजमेंट ना होती एक्चुअली मेरे फेवर में ना आई होती, हम सबके फेवर में ना आई होती, तो सुप्रीम कोर्ट भी ना होता, तो शायद माय लॉर्ड्स आप भी यहाँ ना बैठे होते आज. ठीक है. तो उन्होंने बोला कि कोई क्वेश्चन नहीं बनता है रिव्यू. और उस टाइम पे तो खैर वो बहुत ही अलग बात थी. और आई कैन रिलेट टू इट ऑल नाउ इन बेटर मैनर. Complete streamlining is required in the appointment of judges. If you want to give good administration of justice, you will have to wash your hands from the appointment of judges. Neither government nor judiciary. You will have to find. चंद्रचूड़ ने कहा कि 9 मेंबर की बनाओ. भगवती ने कहा कि लार्जर होना चाहिए, ओपेक नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. जब जिस जज को पाते हो लगा दो. आप 84 पॉइंट कर दो तो 6 जगह उसकी इंक्वायरी कर दो गृह आदमी की. हाँ जी. है यहाँ अब रातों रात और कहते पूछो भी मत. डोंट आस्क अस. ये कौन सी दादागिरी है? और एक बार बन गए तो उसके बाद भी हाँ पूछ तो नहीं क्या सकते. खत्म होगी कहानी? तो रेड टेप है, चिट्ठियों में अपॉइंटमेंट हो रही है. अरे सिट अक्रॉस द टेबल, डिसाइड इट. व्हाई यू फाइट शाई? वो 6 महीने वो रख लेता, 6 महीने वो रख लेता. और जज अब हमारी बेटी का है 3 साल रगड़े खाती रही. You have mentioned. We went from pillar to post. 3 years. और शी इज नॉट अलोन. कितना पट्टा बैठा हुआ. सर आपके करियर में आपने कौन सा ऐसा कोई राइटियस जज जो आपको लगा दिस पर्सन आई कैन कॉल कि इन्होंने अपने जुडिशियल करियर को बहुत अच्छे से निभाया? HR खन्ना. HR खन्ना. यस. HR खन्ना, यस. उनके बाद और सर कृष्णा अय्यर, जस्टिस कृष्णा हाँ, अय्यर. कृष्ण अय्यर was a
उसने क्रिमिनल लॉ में काफ़ी स्ट्रीमलाइनिंग की है। So both these persons are examples of how judges should be, how the judicial न्यूयॉर्क system should be टाइम ने carried लिखा forward. था ऑन एचर खन्ना, if somebody has some power, somebody will make a memorial of this Man. man. Yes. Sir, we keep talking about him in our videos. I have a vivid, great interest in H.R. Khanna's works and Lot other of judges yes, also. So जब भी हम इस बारे में बात करते हैं तो आगे से भी बहुत अच्छे comments, बहुत अच्छे लोगों के reviews आते हैं और पढ़ते हैं. इमरजेंसी में आई टेल यू नाउ, एचआर खन्ना का लड़का था मेजर, अभी भी है, जिंदा है। उसने कहा कि ड्यूरिंग इमरजेंसी हम जब अपने बाप को चिट्ठी लिखते थे, उनके घर के पते पर नहीं लिखते थे, किसी और जगह लिखते थे, वो जाके फिर हमारे पिताजी को लेटर देता था। Look at this level, Chief Justice of India was not allowed to get his doc free, सेंसर होती थी। इससे बड़ी और गड़बड़ क्या होगी? He spoke in one of the meetings. I myself heard that. तो सर अब आपके करियर में तो आप लॉयर रह लिए, गवर्नमेंट सर्विस में रह लिए, फिर आपने कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी आप थे, खूब बिल्कुल थे, फिर आपने प्रोटेस्ट भी करे, अब आप ऑथर भी हैं, हमने आपकी किताबें भी पढ़ ली. व्हाट आर यू प्लानिंग नेक्स्ट? Even professor. I will continue my struggle struggle for what? for justice. Wherever I find anything, I'm now planning to write my autobiography. उसमें सारा I'll try to make them naked through and through. सर अगर आपको जज बनने का कभी चांस No, मिला होता? I never wanted to be a judge. You never wanted. No, I wanted to be in the politics. In the politics. कभी भी मैं जज नहीं बनना चाहता था. Not for a minute. अब देखिए टीपी वधवा जो था, ये फैमिली कोर्ट था ना, इसमें ये रूल नहीं बना रहे थे, तो आई फाइल रेट पिटीशन, मैंने 50 पिटीशनें लिखी है जेल से। आपने कितनी रिट्स फाइल करी जेल से? 50. एक मैट्रिमोनियल केस था, लॉ यह कहता है कि विद इन 3 months एज फार एज पॉसिबल यू शुड डिस्पोज ऑफ द अपील्स। 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, साल गुजर गया इसमें। आई आस्क्ड वधवा इन द कोर्ट, माय लॉर्ड, if a liar doesn't obey law, they must be punished. Man, if the judge does not obey the law, you want to punish us? Man, no, I want answer. आप हमें तो पनिश कर दो, कोई बात नहीं. What would you? 6 महीने डिनर दे, फिर मुझे डिनर में गया, कोर्ट में हमें डांटते हो. I knew very closely. हमने देखा क्रिमिनल कोर्ट है ना, तीजारी Yes, sir. टट्टर से लगे होते, वही बैठा होता था ये. अच्छा, ये कैसे बना है? इसका इंदिरा गांधी का वकील था कुंदन लाल अरोड़ा. ही वॉज लुकिंग आफ्टर क्रिमिनल केसेस ऑफ इंदिरा गांधी. तो इंदिरा गांधी ने कहा कि तुम्हें जज बना दें. कहते नहीं, जो भतीजा के क्या उसको बना दो. कहती ठीक है, उसका नाम दे दो, उसको बना दिया. दिस इज हाउ ही वाज अपॉइंटेड एज जज. अब इनसे क्या जज ले लोगे? So this appears like a clearly opaque system. हाँ. यहाँ से ट्रांसपेरेंसी तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते इस तरह से, अगर अपॉइंटमेंट हो रही थी तो. That is continuing till date. देखो जी, जब तक ये दोनों के हाथ से नहीं जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, भला नहीं हुआ. और जब तक जुडिशरी ठीक नहीं होगी, देश का बेड़ा गर्क होना ही होना है. वी आर नो वे. सर, सुप्रीम कोर्ट ने परसों एक जजमेंट दी है इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में. हाँ, तो आपको लगा कोई अच्छा चेंज आया है? एक ये they have crossed their limit. judicial overreach, would I'd say. So who are you to frame the law? You can tell them to please think out इसको कैसे improve कर सकते हो. But it's not your prerogative कि पैनल बना लो जी, ये कर लो जी, वो कर लो जी. No, it's not your prerogative. अब तो लड़ाई चल रही है ना, रिजू वर्सेस. This is bad. It's very worst. अब 75 साल क्यों सोए रहे थे? Why you are waking today? ये somehow अब सुप्रीम कोर्ट में कोई कहीं से आया हुआ, कोई कहीं से आया हुआ, कोई सब अपने इलाके के तरीके की सोचता है, सारी चीज़ आई.
क्या कर लोगे आप? तो ओके दे आर क्रॉसिंग द लिमिट्स. अच्छा आप चाय पिएंगी? नहीं सर. पी लो. नहीं सर, नहीं जस्ट मतलब आई जस्ट हैव वन और नो टी इन द डे बट आई हैड टू टुडे. एक और चीज थी सर. हाँ दो पूछो. आप एक ही पूछते हैं. अब आपका टीचिंग करियर भी था. उसमें भी आपने अच्छे बड़े पर्सनालिटीज से इंटरेक्ट किया. आप किरण बेदी वाज माय स्टूडेंट. यस. तो हाउ वाज योर इंटरेक्शन विद हर? शी वाज वेरी एरोगेंट. एज अ स्टूडेंट आल्सो? यस. शी केम टू मी. ये गोवा से आई थी. इसको मैंने चार्जशीट करवाया था. बिकॉज शी वाज अलाउइंग द क्रिमिनल्स आल्सो. शोभराज आल्सो आउट ऑफ द वे देती थी. और रक्षाबंधन वाले दिन इसने गेट खोल दिया था. शी अलाउड द फॉरेन जर्नलिस्ट टू विजिट दैट. So I filed a writ petition against her also in the High Court. And the High Court, the LG was with me. Dave was the LG. And she was punished and was sent to Goa. She tried to approach me as guru. I refused to meet her. और सर मिस्टर जेटली के साथ इंटरेक्ट? हाँ? जेटली जी के साथ? जेटली तो बच्चा था मेरे सामने. हाँ. He was a student when I was teacher. Yes. सर मुझे लगता है हमें कोई टाइम लिमिट रखना नहीं चाहिए था. मतलब इवन आई डोंट फील लाइक एंडिंग इट एंड देयर आर लॉट मोर स्टोरीज आई थिंक व्हिच आर कमिंग फ्रॉम यू. तो लेकिन क्या करें, वो तो खत्म तो से करना ही पड़ेगा. सर एक और पूछ लूं? अरे क्या बात. एक और पूछ लेंगे. This is one book that I was reading. I was showing to the viewers also. You recognize this book, right? Very well, है ना? हाँ. तो आपने इसके भी एक तरह से जवाब में एक किताब रिबटल लिखा आपने एक तरह से. उस टाइम पे you were writing against a person. You were writing with respect to a person who has been the Chief Justice of India, and you knew that it is a controversial issue. What made you do that? I could not tolerate the treatment which was given to that girl. और उसके खिलाफ उल्टा केस बना रहे हैं. SHO तिल कुमार का इस लड़की को ले गया चीफ जस्टिस के घर के माथा रगड़ो को मैं फिर एडवांस नहीं करूँगा. इससे और घटियापन क्या हो सकता है. उसको 22 पेज का लेटर आप पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. उसके आदमी को अंदर कर दिया, भाई को अंदर कर दिया. अच्छा अगर ये कसूरवार थे तो आपने वापस क्यों ले लिया? एरियर क्यों दे दिए? राइट है. बट ये तो छाप नहीं रहा था. आई हैड टू गेट इट इन द नेम ऑफ राजीव माई सन. कहता हम मरना अपने छाप के. आपको पता ही है सारा. तो इसलिए अब राज्यसभा में चले गए. वहाँ गालियाँ खा रहा है. क्या करोगे आप? ये तो पता नहीं कैसे लिख दिया मैंने. हाँ. अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इस पॉइंट पे आके व्हाट शुड आई लर्न फ्रॉम दिस और व्हाट शुड आई टेल द व्यूअर्स टू लर्न फ्रॉम दिस. मतलब क्या बोले हम आपकी तरह बहुत ज़्यादा अपने करियर की तरफ कहते हैं ना समर्पित होना, या फिर राइटियसनेस के लिए हमेशा लड़ना, या पॉलिटिक्स में इस वजह से आना बिकॉज यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम टू चेंज द सिस्टम फॉर गुड, या फिर इतना ज़्यादा ब्रेव होना. So there are now lots of messages that are going forward to the people. Anything that you'd like to say to them? They're all young audience. जो जैसे लोग आपको मिलते रहते हैं, जैसे हम लोग आपसे आके लाइब्रेरीज में मिलते हैं, आज भी आप लाइब्रेरीज में बैठे रहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी सीखने की बात है. मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंडिंग हिज एंटायर डे इन इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट्स लाइब्रेरी एंड ही कीप मीटिंग पीपल, कीप टेलिंग न्यू थिंग्स टू पीपल. तो इनके लिए आप कुछ कहेंगे? My only advice to them is they should be fearless. And they have yet to start their career. और अभी से भी अगर वो इस तरह की हरकतों में पार्ट लेंगे, that's not good. And I tell you, the youth is the future of my country. They need to be told what should be done and what should not be done. And there are very, very few people who can take this responsibility. I am a very small man. लॉयर की ड्यूटी ये भी है कि क्लाइंट को धोखा मत दे. टेल देम द रियल पोजीशन. सिर्फ इसलिए कि आपको पैसे मिलेंगे, यू गो ऑन लिंगरिंग. दिस इज नॉट. सम एथिक्स शुड बी देयर.
और करोड़ों लाखों रुपए ये खर्च कर रहे हैं शराब पिलाने में, डिनर देने में. So no right person is coming forward. Who will take this? I just see what will happen. हमें कौन गाइड करेगा? आज मैं राजीव को भी कह रहा था बेटे को, मैं बेटे कहाँ जाएंगे बताओ. कहता पिताजी आप ठीक जगह बैठे हो. हमें नहीं समझ आती किसको पकड़े. तो इसीलिए यह कि जब कहते हैं स्टॉर्म आती है झुक जाओ, वेट फॉर दी टाइम. आई डोंट नो व्हेन दैट टाइम विल कम. So with this, I don't think I have any other thing to say, though I have a lot of things in my mind to still ask. But for the dearth of time we have with respect to this video, आधा कप ची पी लो हमारे साथ. चाय हम पी लेंगे. Sir is very sweet and he has been offering us a lot of things to eat, and you all can see what all is lying here. So I am having a good time, great time with sir. हम तो अभी और बातें करते रहेंगे, but आप लोगों के लिए I can just say here, I have nothing more to say. With this, I'll just end this video with a promise to meet you again with a new video on a new concept on VLOGish. Bye for now. We took a lot of your time ना. I told ma'am कि 1 ही घंटा लगेगा, but काफी समय ले लिया हमने. I'm very happy. आजा करो.